चलिए ठीक है फिर since there are no more presenters available, we just start. um, जो आज का हमारा टॉपिक है that is modern thought and expression. So this is related to the philosophical ideas in the modern era. हमने last time modern literature की बात की थी, modernism की बात की थी about how that era changed the creative arts. So we're going to look at some of the philosophies, philosophers जो थे जिन्होंने किस किस तरह के ideas दिए throughout that time. Okay, so before we begin with the modern thoughts, let's just take a look at the philosophical ideas जो कि ancient थे, पुराने थे, and we'll look at Socrates, Plato, and Aristotle. Again, now when we talk about philosophy, all of these philosophers they've given several ideas, बहुत सारे concepts, and their philosophies are obviously very detailed. लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ बहुत specific चीज़ों को target किया है, ठीक है? So I'm only focusing on very specific aspects of their philosophy, and that is the only thing that you have to focus on as well from examination point of view. So you don't have to study the philosophers in detail. Just focus on whatever I've discussed. So if you begin, the first, like we know that these were the ancient Greek philosophers. ठीक है, उस जमाने के थे ये सारे. So Socrates, he believed that conscience is the inner voice of God. So there's one thing to note that try to also notice while we discuss them that कितनी philosophical ideas ऐसे हैं जहाँ पर एक religion का overtone है, ठीक है? So how many ideas are there that um, also reflect the person's own religious beliefs? So Socrates, again, we'll see starting that he believed that conscience, जो हमारा ज़मीर है, that is the inner voice of God. So he believed that वो जो चीज़ है वो basically खुदा की तरफ से आती है. Ultimate source of truth that we must seek to follow even at the cost of life. So he believed in morality. He do the right thing because that is God's voice. That is not our voice. That is not human, and we should follow it no matter what. So this is like a distinction between good and bad according to him, and he believes कि conscience उसमें role play करता है. Now Plato, he believed that there are two kinds of worlds. एक world हम experience करते हैं through our senses, which he called the world of sense experience, and the other world he calls the world of ideas. Now, what is the difference? Sense experience is what we sense, what we perceive. हमारे sense organs से हमें जो चीजें perceive होती हैं, मतलब what we can see, what we hear, and जो हमारे बाकी के और senses हैं, touch, feel, smell, all of that. So those these ideas, these are all our senses, ठीक है? Our sense experiences. And world of ideas are basically our thoughts, what we are thinking about. हमारे जहन में क्या चल रहा है वो world of ideas है. He believes कि the idea is the ultimate truth. Okay? कि अब ultimate truth का क्या मतलब है कि this is what we should be focused on. जब कि जो हम sense करते हैं उसमें कुछ धोखा भी हो सकता है. We cannot completely rely on it, but what we should focus on is the world of ideas, our beliefs. And इसके अंदर सबसे important चीज he says is the form of the good. So he has named it as the form of the good, and he says this is the highest of all forms. क्या मतलब है form of the good का? Form of the good means knowing what is good. ठीक है? So he says that once we understand and once we get the knowledge कि good क्या है, हर चीज का एक true nature क्या है, morality क्या है, that means that we have found truth. So he's again linking truth with morality. जैसे Socrates ने conscience की बात की थी, conscience is also related to morality. So Plato also talked about morality, and he said that that is what is good, what is moral. So if you behave immorally, it means कि आपके पास knowledge ही नहीं है. इसका मतलब आपने अभी तक सच को देखा ही नहीं है, which is why you're immoral. Next we have Aristotle. So Aristotle, he believes the opposite. He says कि sense experience basically is what the ultimate truth is. मतलब ideas जो है वो जहन में होते हैं, but what we sense, what we see is what is more important. And so he says कि वहीं से हमें true knowledge मिल सकती है कि if we look around us, हमारे nature में कितनी चीजें हैं, look at all the things that we can see, that we can hear, that we can touch, that we can smell. And he says understanding what each and everything is meant to do
He says that is what is really good. Good का मतलब ये नहीं है कि आप ने मतलब जहन के अंदर आपने क्या सोचा. He says good की जो definition है that is if a, any object is fulfilling its purpose. ठीक है, तो लाइक ही सेज कि अ गुड टाइगर विल किल एंटेलोप. ठीक है, वो उसका रोल है, उसका पर्पस है. एक वाइल्ड एनिमल का पर्पस है हंटिंग करना. तो इफ दैट एनिमल इज हंटिंग, इफ द कार्निवरस एनिमल इज हंटिंग, देन इट मीन्स कि वो अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है, विच मीन्स इट इज गुड. तो गुड ह्यूमन बीइंग क्या है? according to him, the purpose of a human being is to use reason and to get educated. कि वो educated हो, चीजों के बारे में जाने समझे. तो अगर एक इंसान वो सारी चीजें कर लेता है, इसका मतलब वो अच्छा है. तो he defines good as something that is related to purpose, and moral absolutes are within the nature of things. Okay? जितनी भी हमारी मोरालिटी है वो हमारे अंदर ही है, वो बाय बर्थ है, वो इनेट है. तो हर एक की मोरालिटी को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते. तो ही सेज कि वी जस्ट हैव टू सी कि हम अपना रोल पूरा कर रहे हो, एंड गॉड इज द कॉज एंड फाइनल पर्पस ऑफ एवरीथिंग. तो यहाँ पर भी यू कैन सी दैट देयर इज अ रिलीजियस लिंक दैट ही एसोसिएट्स गॉड विद द अल्टीमेट पर्पस. कि हर इंसान का या हर चीज का अल्टीमेट पर्पस ये है कि देयर इज गॉड. तो because God has created and मतलब that is what is visible. So he says कि इसीलिए you can see that he also believed in God and he had a religious perspective. So these were the some of the ancient ideas. Now जो आगे चीजें आई हैं, they were somewhat similar and somewhat different, मतलब depending on the idea of the philosopher. So the first modern philosopher that we're going to talk about is Rene Descartes, and this is a famous quote by Rene Descartes that is, I think, therefore I am. अब इसका क्या मतलब है? I think, therefore I am. This was like the crux of what he believed in. So Descartes, what he did was that when he read up about all the philosophies जो past की थी, he said कि बहुत सारे जो ideas हैं, they're all like uh, they're not very valid. कि उनका कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वैलिड नहीं है. तो फिलोसफी में तो अब तक किसी ने कोई ऐसी बात की ही नहीं है जो वर्थ सेविंग हो. तो हमें तो सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा. तो ही studied a lot and he was like, no, it doesn't make sense. These philosophical ideas do not make sense. So let's start from begin. So, which is why he's often like dubbed as the father of modern Western philosophy. Modern Western philosophy. Because he जितने भी ancient ideas थे उसने सबको scrap किया. उसने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं मानता. I believe this is what I am going to talk about. And again, he talked about truth. कि what is truth? मतलब हम कैसे कहेंगे कि सच क्या है, क्या चीज है जो मौजूद है, एग्जिस्ट करती है. And he wanted to see कि everything, he tried to be unbiased. अपनी सारी knowledge, अपनी सारे experiences को, biases को, he tried to push it aside, and he wanted to see कि क्या कोई ऐसी चीज है दैट आई नो फॉर श्योर, जिसमें मुझे डाउट ना हो, जिसमें मुझे 100% यकीन हो कि ये बात सच है. क्योंकि जैसे हमने देखा कि पुरानी फिलोसफी से टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ. So it's like truth exactly. Do I know anything for sure? And when he tried to do that, he noticed that everything, every concept that he knew of, he said कि इन सब पे डाउट हो सकता है, इन सब पे इन सब की रियलिटी की गॉड है या नहीं है, मेरी मेमोरीज ठीक है या नहीं है, क्या लोगों ने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है. इवन ही टॉक्स अबाउट मैथमेटिक्स के ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट सम पॉइंट आई कैन जस्ट क्वेश्चन इट कि क्या वाकई में एम आई 100% श्योर कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये लिखा गया है, जैसे कहा गया है. एंड ही वाज लाइक नो, आई कैन नेवर बी 100% श्योर अबाउट द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग. चाहे कोई कितनी ही कन्विक्शन के साथ क्यों ना करे, देयर इज ऑलवेज अ शेड ऑफ डाउट. So while doing this, he realized that there is only one thing that he is 100% sure about, and that is कि वो doubt कर रहा है. That he is doubting, he is doing the doubt. So he says that this is the only thing that I am sure of कि मुझे doubt है. इसका मुझे 100% पता है. ठीक है. So then he concluded from this that if I doubt it, like if somebody is doing the doubting, it means कि वो जो doubt है वो कोई कर रहा है, which means that somebody exists. So he says कि doubt is what proves कि something exists. अगर आप विदाउट डाउट एक चीज को 100% मतलब विदाउट
knowing anything आप उसको accept कर लें, इसका मतलब you're just you're just agreeing to think without using your own head. And he says that when we start to think, then we know that हमारा दिमाग चल रहा है, and that is what existence means. कि a person's mind should be working, we should be thinking, critical thinking हमारी होनी चाहिए. ठीक है, so the simple meaning of the phrase is that if one is skeptical of existence, that is in and of itself proof that he does exist. So he says skepticism, जैसे मैंने कहा critical thinking होनी चाहिए. He says skepticism is what is the true essence of being. It is the true essence of existing. You should be skeptical. You should question everything. So that was like you could say the ultimate message. So whatever he's saying, it sounds a little confusing. कि, doubt करने का मतलब ये है कि 100% he's sure that he's doubting and all of that. But the whole like idea is that skepticism is important. You should that a man's existence is useless, is purposeless अगर वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, अगर वो सोच नहीं रहा है. Okay, so ठीक है, so this is where he comes with the term that he's a thinking thing, a thing that thinks. So this is what what my capability is, and that is where truth will lie. So he says, what is thought? Thought is something जो कि जिसके बारे में मुझे पता हो कि it is happening. ठीक है, so he says what happens in me such that I am immediately conscious of it. So if something happens and I am conscious about it, it means I'm thinking. तो इसीलिए वो thoughts को dreams के साथ distinguish करता है. He says कि thoughts and dreams are different. They're not the same because dreams में we are not conscious about what we are thinking. हमारा दिमाग हमें खुद लेके जाता है. So that is not thinking. Thinking is when you're consciously doing something, then you know that something is happening inside your head, and आप उसके बारे में आप उसको process कर सकते हो. So this is according to him, this is rationalism, and he says, and rationalism का मतलब ही यही है कि हम सोचें या हम question करें. So he talked about rationalism. Okay, so far मुझे बताइए if there is any question, so let me know, and if not, then we can move ahead. Okay, so we are moving on. I have a few questions. Okay, a couple of questions. Acha, before those questions, let's go to one final idea that Descartes gave. That was he said कि हमारी, because he's talking about thoughts, so he said कि thoughts तीन तरह के हो सकते हैं. His thoughts and ideas, like the word idea is used for thought mostly in all these philosophical sense. He says first type is the fabricated type. Fabricated ideas. Fabricated ideas वो हैं जो हमारी assumptions हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा जहन एक पिक्चर बना देता है. ठीक है, like for example a person who has never eaten a moose, but he assumes कि beef जैसा टेस्ट होगा, cow जैसा टेस्ट होगा. तो अगर हमें इस चीज के बारे में पता नहीं है, but we make an educated or uneducated guess about it, he says these are fabricated ideas. Fabricated इसलिए है कि we don't know, लेकिन हम assume कर रहे हैं. Adventitious ideas, he says, are those that cannot be manipulated. Okay, for example, which my experiences are. Like if I prick myself on the finger, I am going to feel pain. That pain is true. मतलब उस pain में कोई doubt नहीं है कि मुझे pain है. That is an adventitious idea कि वो हमारा mind change नहीं कर सकता. Like another example is, if you're in a cold place, you're going to feel cold because your body's temperature is going to drop. So he says that is a truth that you cannot change. Your mind is going to perceive it as it is. These are adventitious ideas. जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती because you are experiencing it. Third ideas are innate ideas, and he says these ideas are made by God. So innate ideas क्या है? So innate ideas are those which are like when we look around us and we see the essence of nature. तो यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं कि इसका एक जो एक religious aspect है, his own belief in God is what is reflected here. So he says that when we look around us, there are so many things that can't be manipulated. We know that if a leaf is green, it's green. That is the knowledge, ठीक है, and we can appreciate it, we can acknowledge it, but हम उस green color को change नहीं कर सकते. तो हम चीजों को study जरूर कर सकते हैं जो हमारे आसपास हैं, molecules हैं, atoms हैं, all of these things. So he says that
these are innate ideas, and these ideas are God given ideas. ये ideas हमारे जहन में हमने create नहीं किए, because it is related to everything that God has created. So we can appreciate it and acknowledge it, but we can't change anything about it. These are the innate ideas. So he says कि ये तीन तरह के हो सकते हैं, and this is what constitutes our thought process. कुछ चीज़ों पे हमें 100% श्योरिटी है, कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में हम कुछ कर नहीं सकते, एंड वी अगेन अप्रिशिएट कि गॉड एग्जिस्ट, एंड सम थिंग्स वी अज्यूम. So this is all about the thought process. Okay, so here I have a couple of questions and I want you to answer these questions. ठीक है, तो सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में and give me an answer. The first question is, do you have any beliefs that you would hold on to even if there were no evidence or arguments for them? ठीक है, तो क्या मतलब है कि क्या आपके कोई ऐसे beliefs हैं? Think about it. ठीक है, take a few minutes, think about it. Do you have any beliefs जिसके बारे में कोई evidence नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस चीज को मानते हैं? ठीक है, इस एविडेंस Evidence मतलब फिजिकल एविडेंस या मतलब जैसे आपकी उस बिलीफ को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है. जैसे अगर कोई और आपसे कहे कि अपने इस बिलीफ के बारे में मुझे कन्विंस करो, तो यू वोंट हैव प्रूफ कि आप उसको साबित कर सकें, लेकिन आपका फिर भी उस पर बिलीव. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा, डू यू हैव एनी बिलीफ दैट यू वुड होल्ड ऑन टू इवन इफ देयर वर एविडेंस अगेंस्ट देम? तो क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बिलीव करते हो एंड यू वुड कंटिन्यू टू बिलीव इट इवन इफ you find that there are no evidence, या आपको उसके खिलाफ एविडेंसेस मिल रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में there are no evidence, सेकंड में उसके खिलाफ कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस आपको मिल रहा है, सामने से कोई आपको प्रूव कर रहा है कि नहीं, ये जो आप सोच रहे हो, ये जो आपका बिलीफ है, ये गलत है क्योंकि ये रीजन है, लेकिन उसके बावजूद आर देयर बिलीव्स दैट यू वुड स्टिल होल्ड ऑन टू, दैट यू वुड स्टिल नॉट गिव अप? ठीक है, सो टेक अ फ्यू मिनट्स, थिंक अबाउट इट एंड आंसर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस फॉर मी. मैम जैसे हम लोग का बिलीफ मिक्स पे होता है, या फिर हमारे जो रिलीजन पे बहुत सारे ऐसे बिलीफ होते हैं जो जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं होता लेकिन हम उसे मानते हैं, तो क्या वो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. तो अपने मुझे कोई एग्जांपल देके बताइए क्या हो सकता है. जैसे जो आपने रिलीजियस बिलीफ भी कहे, आप मुझे थोड़ी सी कोई एक एग्जांपल देके बताएंगे किस तरह का रिलीजियस बिलीफ है जो बगैर किसी एविडेंस के या कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस के भी लोग मानते हैं? जी. जैसे मैम कि हमारे मरने के बाद जो भी होगा हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि जन्नत है, दोजख है और फिर हिसाब होगा. ये बिलीव है हमारे, ठीक है, लेकिन किसी ओके. ने आज तक देखा नहीं, तो हमें वापस आके किसी ने बताया नहीं कि हाँ मैंने ये देख कर आया हूँ, ये हुआ है. हम्म. हमारे हम्म. belief है. ठीक है, ओके, राइट. एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन. और ये सिर्फ हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं, बहुत सारे रिलीजन में हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट है, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव इन इट, एंड दैट्स ट्रू कि आज तक कोई भी डेथ से वापस नहीं आया है ये बताने के लिए कि मरने के बाद मेरे साथ ये हुआ, बट पीपल स्टिल बिलीव इन. और कोई एग्जांपल है? अपने ऊपर रख के बताइए या आगे पीछे जो आपके लोग हैं उनके ऊपर रख के बताइए.
जैसे अगर हम घोस्ट मतलब भूतों वगैरह की बात करें तो हम लोगों ने मतलब एज पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो कोई एविडेंस नहीं देखा है लाइक हार्ट अटैक, लेकिन आई बिलीव इन दैट। लोगों से बस सुना है, और मतलब थोड़ी कुरान में जिन के बारे में लिखा होता है उसके बारे में, वरना मतलब एज सच हार्ट अटैक नहीं देखा है। और ये दूसरे सवाल का भी जवाब दे सकता है कि बहुत सारे लोग कभी अपने अगर वो बताएं एक्सपीरियंस तो दूसरा बंदा को इसको मतलब वो कर सकता है, कॉन्ट्रडिक्ट एविडेंस दे सकता है कि नहीं ये नहीं है, इसकी कुछ और रीजनिंग होगी, लेकिन फिर भी यकीन करते हैं। ओके, करते हैं। ठीक है। और अनदर जैसे वन ऑफ द, नजर लगना, बहुत सारे हाँ लोग हाँ, कहते हैं कि नजर नहीं लगती, इट्स हम्म जस्ट अ मिथ, हम्म, लेकिन हम वो बिलीव करते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि सो ये दो एस्पेक्ट्स आई थिंक आपने जो बताए हैं अभी, दीज आर द वंस जो हमें पूरी दुनिया में नजर आ जाते हैं, मतलब इन एवरी कल्चर, इन एवरी रिलीजन, किसी ना किसी तरह से। तो हम सिर्फ एज मुस्लिम्स नहीं, बल्कि इन इन एवरी कल्चर हमें इसका कोई ना कोई एस्पेक्ट है, एंड इट इज ट्रू दैट एक तो हम अगर लाइफ डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ की बात करें, दूसरा स्पिरिट्स एंड गोल्स, उसकी मैनिफेस्टेशन, उनका क्या मकसद है, मतलब है, उनके बिलीफ बिल्कुल ऐसे हैं जो कि जिसको लोग मानते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखें, तो अब मुझे बताइए कि व्हाट डज इट मीन, लाइक व्हाई, जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर उस पर बिलीफ क्यों, ऐसी बातों पे बिलीफ हमारा क्यों होता है जब हमारे पास एविडेंस नहीं है। लाइक यू सेड कि इवन समटाइम्स कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस भी मिल रहा हो कि लोग साइंटिफिकली उसको प्रूव कर दें कि नहीं ये चीज नहीं थी, ये तो ऐसे था, फिर भी हम अपने बिलीफ को होल्ड ऑन करते हैं। जैसे हियर इज द पॉइंट दैट आर यू आइडेंटिफाइंग अ वे दैट योर बिलीव्स आर समटाइम्स नॉट सेंसिटिव टू रीजन, क्या हमारे बिलीफ का रीजनिंग के साथ या लॉजिकल रीजनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता एट टाइम्स, and why is that so? Again, give me your opinions about it. जैसे कभी कभार लाइक ऐसा होता है, जैसे अगर भूत वाले पे ही कहें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे दुनिया में लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं जिनके जवाब नहीं होते। एक कुछ एक्सपीरियंस कुछ लोग के तो चलो एविडेंस दे देंगे, लेकिन बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जिनके कोई जवाब नहीं होते, मतलब Hmm. उसका कोई अपोजिंग फैक्ट भी नहीं होता और ना उसके कोई मतलब सपोर्टिंग फैक्ट होता है। तो उस पे फिर आप मतलब वो आप अपनी इमेजिनेशन से वो करते हो, या आपने सुना होता है, या मतलब जो आप बिलीव करना चाहते हो। अब अगर मैं यही बात किसी ऐसे बंदे को किसी कोई ऐसा किस्सा सुनाऊं जो जिसके खिलाफ ना कोई एविडेंस है ना उसके सपोर्टिंग में एविडेंस है, तो वो अपना कुछ थियरी फॉर्म कर लेगा जो उसके मतलब उसने जो देखा होगा, जो उसका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई चीज जो अनएक्सप्लेनेबल है उसकी एक्सप्लेनेशन अपने लिए बना लूं। ठीक है, लेकिन फिर क्यों, मतलब और ये, जैसे मैम लोगों लोगों का माइंड सेट भी हो जाता है। जैसे हम बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, या फिर हम लोग टीवी में कोई चीज देखते हैं, कुछ भी है, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है। हमें नहीं पता जिन कैसे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बना हुआ है कि जिन की शक्ल अजीब सी होगी, और जो भी हमारे हम लोग जो टीवी में देखते हैं या मूवीज देखते हैं उसकी वजह से जो भी हमारे दिमाग में एक चीज बनी हुई है, हम अगर कोई इमेजिनरी कोई चीज देखते भी है ना, जैसे फील होता है कि कोई हमारे बराबर में खड़ा है, तो हम्म, वो उसी फेस में फील होगा कि जैसे उसकी शक्ल कोई बिगड़ी हुई है, या एक्स वाई जेड जो भी है, हम्म, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिलीफ की बात करते हैं कि आपका एक यस। मतलब एक्सपीरियंस कहें या नहीं, टीचिंग्स कहें कि माइंडसेट बना हुआ है, टीचिंग है, अर्ली एक्सपीरियंसेस है। जी इसका मैम। ये मतलब हुआ कि अगर कोई चीज आपको बचपन से सिखा दी जाए तो you will start holding on to it even if there is no evidence or contradictory evidence to it, because आपके ब्रेन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है एज द ट्रूथ। तो यहाँ पर हम इस मतलब दिस क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मीन्स कि लॉजिक और रीजनिंग हर जगह काम नहीं आती, no matter how scientific minded some person is, like some people they will hold it as, मतलब वही ना कि आप अगर प्रूव नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे जिन्होंने रिलीजन को और उन सब चीजों को डिफाई ही इसलिए किया, या जो एथीज्म की तरफ चले गए या उसकी तरफ चले गए, वजह उनकी यही होती है कि हमें इसमें एविडेंस नहीं मिल रहा एंड हम एविडेंस बेस्ड ही चीज करना चाहते हैं। तो वी आर गोइंग टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ आवर टीचिंग जो बचपन से हमें सिखाया गया सब कुछ था, बिकॉज आई वॉन्ट एविडेंस, आई वॉन्ट अ साइंटिफिक हार्ड कोर एविडेंस कि आप मुझे बताएं कि ऐसा है, मुझे साबित करें कि ऐसा है।
So there are people like that as well. So it all, जैसे आपने कहा, it comes down to an individual's way of looking at things. हमने कैसे learn किया, कैसे grow किया और क्या experience किया. But for some people, their beliefs are very important and their beliefs are very sacred. तो उनको क्वेश्चन करना या उस पे मतलब उस पे डाउट क्रिएट करना ही उनके लिए बहुत ऑफेंसिव हो जाता है एंड दे डू नॉट वांट टू हियर इट बिकॉज इट अगेन इट थ्रेटन्स देयर बिलीफ एंड दे फील अनकंफर्टेबल कि नहीं हमें जैसे हम अगर अपनी बात करें अपने रिलीजन में अ लॉट ऑफ पीपल दे डिस्करेज आस्किंग क्वेश्चंस अगर कोई जैसे बच्चे हम देखते हैं बच्चे अक्सर सवाल करते हैं इस तरह से मासूमाना है कि जैसे अल्लाह ताला कहाँ है या कैसे है मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जिसको उनको एकदम से चुप करा दिया जाता है कि ऐसी बातें नहीं करते ऐसी बातें नहीं पूछते अच्छी बात नहीं होती तो हर चीज का इंसान के पास जवाब नहीं होता तो चीजों में जो है वो हिकमत लगी होती है इंसान को नहीं पता बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे उसका पार्ट है हमारी टीचिंग का तो भी which is also another reason why we hold on to our beliefs um, even if there are no evidence or contradictory evidence are available. Yeah, and this becomes a little problematic for those beliefs which are harmful. तो कुछ लोग जैसे अगेन हम कल्चरली बात करें तो देयर इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल सर्कमसिजन जिससे हमें पता है कि मेल्स में तो होती ही है रिलीजियस लेकिन फीमेल सर्कमसिजन अभी भी प्रैक्टिस होती है इन लॉट ऑफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और आई एम नॉट श्योर आई थिंक पाकिस्तान में भी शायद इतना कॉमन शायद ना हो मिडल ईस्ट में ज़्यादा है बट बहुत सारे अरब कंट्रीज में जो है वो इस तरह की मतलब एक प्रैक्टिस चल रही है फीमेल सर्कमसिजन विच इज म्यूटिलेशन ऑफ द फीमेल प्राइवेट पार्ट और वो उनका पर्पस अगेन वही है कि दिस ये जरूरी है और वो सारी चीजें तो एक ट्रेडिशन है एक कल्चर है जो चला आ रहा है लेकिन उस पे इवन इफ मेडिकली साइंटिफिकली जो है उनको दिखाया जा रहा है कि दिस इज हार्मफुल और इससे कोई बेनिफिट नहीं है जैसे अगर मेल सर्कमसिजन के बेनिफिट्स मौजूद हैं फीमेल के नहीं है ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं बट बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज अ बिलीफ कि नहीं ये जरूरी है ये करना है व्हाट इज नीडेड तो उस पर फिर वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उसको चेंज नहीं किया जाता इस तरह की जो बिलीफ है जो हमें खुद को पर्सनल हार्म पहुंचा सकते हैं या दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं दे नीड टू बी क्वेश्चन एंड वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है द पर्सन इज अनविलिंग टू लिसन टू रीजन या वो लॉजिकली उस चीज को अप्लाई ना करे सिमिलरली आई थिंक मैंने पहले भी इसमें मेंशन किया था अबाउट द इंसेल इंसेल मूवमेंट INCL सेल जो है वो इट इज शॉर्ट फॉर इनवॉलंटरी सेलिबेसी तो इन सेल्स जितने भी हैं दे कॉल themselves incels and these are men who believe that um, they have been deprived of female intimacy and females ने उनके साथ गलत किया तो they believe that they have a right to have intimacy with women but क्योंकि women उनमें interested नहीं है women ने उनको शन कर दिया तो they're like ये गलत है ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए तो हम सेलिब्रेट हैं but involuntarily मतलब हम चाहते नहीं है लेकिन हमें मजबूरन रखा गया है so this is another group so they believe that they have a right to have relationships with women even if women don't want them and they hold women responsible so in cells जितने भी हैं some they might even become very मतलब they have very एक patriarchy misogyny तो है ही उनके अंदर but they can also be harmful for the community because there have been cases जहाँ पर men incels have attacked women they have tried to kill women because they feel कि इन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया they deserve to die so again this is a belief uh, that is harming you and the society as well so things like these need to be questioned and हम जब लॉजिक की रीजनिंग की थिंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स हमें दिखाती हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग जो कि हम फॉर ग्रांटेड लेके हाँ लॉजिकल थिंकिंग तो सब भी करते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिलोसोफर ठीक है लाइबनिट्ज again before we continue here's the question okay just try to answer this question if God is all good all wise and all powerful how did evil come into the world दुनिया में बुराई क्यों है
इफ गॉड इज ऑल पावरफुल, वो जो चाहे कर सकता है, तो फिर दुनिया से बुराई खत्म क्यों नहीं कर देता? मैम आई थिंक ताकि मैम लोगों में बुराई का फर्क पता हो लोगों को। लोगों को क्या हो? सॉरी। अच्छाई और बुराई का फर्क पता हो। अगर सिर्फ अच्छाई होती तो लोगों को बुराई और अच्छाई का फर्क पता नहीं होता। ठीक है, आमना आप क्या कह रहे इसमें से आई थिंक कि क्योंकि जैसे गॉड ने वर्ल्ड बनाया लेकिन फिर वो हर बंदे के एक्शंस नहीं कंट्रोल करता है, वो आपको एक सिचुएशन में जैसे डालते हैं लेकिन फिर आप क्या करते हो वो आपकी अपनी विल होती है। हर चीज गॉड नहीं करता, वो मतलब कि आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है, फिर आप आगे जो आउटकम होगा वो आपकी इसमें होगी। हर चीज गॉड की वजह से नहीं होती है। हर अगर अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब गॉड की वजह से ही हुआ है, वो आपके अपने एक्शन है। बुरा काम भी आपका अपना एक्शन है। आपको एक सिचुएशन में डाल सकते हैं कि उसमें फिर आपको चूज करना हो कि आप किस तरह रिएक्ट करते हो? लेकिन फिर ऐसे भी तो लोग हैं ना जिन्होंने कुछ किया गलत नहीं होता, लेकिन उनके साथ होता बहुत बुरा है। हैं। हाँ लेकिन मैम वो भी किसी वजह से ही होता है ना, वो किसी किसी के एक्शन की वजह से हुआ होता है उनके साथ बुरा, तो उस बंदे के एक्शन की वजह से हुआ होता है ना। वही तो है कि मतलब उस बंदे ने कुछ किया उस वजह से आपको वो हो रहा है प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो इसमें फिर गॉड इंटरफेयर क्यों नहीं करता? लोगों की मिजरी क्यों नहीं खत्म करता जो इनोसेंट है? आई थिंक क्योंकि अगर वो इस तरह ही कंफ्यूज, वो वर्ल्ड बनाने की जरूरत है, फिर वो जो जन्नत होती है कि सारे अच्छे लोग होते हैं और जो बुरे लोग हैं वो दोजख में होते हैं, वो जो मतलब बाद में आप जाओगे, वरना दुनिया क्यों आता है यहाँ पे आपको अपना खुद ही करना होता हम्म, ठीक है। किसी का कोई और पॉइंट और है? अगर यहाँ पे ही सब हो जाए, यहाँ पे ही सब हो जाए तो फिर आफ्टर लाइफ की कोई तुक नहीं रहेगा ना, फिर तो है। हाँ सब यहीं पे तो है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इंटरेस्टिंगली जो लाइबनिट्ज ने कहा, उसने भी ऐसे ही कुछ कहा। लाइबनिट्ज वाज समबडी हु हैड रिलीजियस, उसका एक वो था, पर्सपेक्टिव था, और उसने अपने रिलीजन को अपनी फिलोसफी के साथ बिल्कुल कंबाइन कर दिया। तो ही, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट पीपल वुड आस्क बिकॉज़ ही वाज रिलीजियस। तो जाहिर है आप ये देखें कि अगर आप किसी एथियस्ट से बात करते हैं और somebody who's not very religious, तो वो इसी तरह के सवाल जरूर करता है ना कि अच्छा, अगर तुम्हारा तुम कहते हो कि खुदा ऐसा है तो फिर वो ये क्यों नहीं कर देता, वो ये क्यों नहीं कर देता। यस तो मैम। ये सवाल ऐसा है जो कि हम सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, ठीक है। तो ही वाज आल्सो, बिकॉज़ ही वाज somebody who was very religious, he also came across questions like this। तो उसने अपनी फिलोसफी से इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो ही gave the philosophy of theodicy, the concept of theodicy, and he says कि ये जो दुनिया है ये imperfect क्यों है, मतलब ये perfect क्यों नहीं है, सब कुछ अच्छा क्यों नहीं है। And he says कि this is the most perfect world that God could have created। इससे अच्छा वर्ल्ड गॉड बना नहीं सकता था, ठीक है। क्योंकि गॉड इज ऑल पावरफुल, he knows what is right and he knows what is perfect and he has made perfection। तो कहा कि ये वर्ल्ड इम्परफेक्ट नहीं है, वर्ल्ड तो परफेक्ट ही है, और अगर इससे बेहतर कोई वर्ल्ड हो सकता तो वही वर्ल्ड बना हुआ होता, हम इस वर्ल्ड में नहीं होते, क्योंकि हम इसमें हैं, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लाइक यू ऑल मेंशन, जैसे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं दे आर इम्परफेक्ट। So the perfect world is having problems because people are imperfect। जैसे गॉड ने लोगों को एक चॉइस दी, ऑप्शन दिया, और also has given them consequences। जैसे अगर सफरिंग लोगों में होती है तो सफरिंग का मतलब ये है कि आपके एक्शन का कॉन्सिक्वेंस, आपके या किसी और के होता इन दी एंड यही है कि लोगों के अंदर ही, दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड इट, कि मतलब गॉड ने ये किया सिर्फ कि उसने अलाउ कर दिया कि ह्यूमंस कैन गो थ्रू सफरिंग, ह्यूमंस कैन गो थ्रू पेन। तो ही हैज अलाउड, ही हैज नॉट इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्ट करने वाले लोग खुद ही हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि ये जो चीज है कि हम मतलब इवन मतलब दिखा के मोरल इविल एंड फिजिकल इविल एज द नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेटाफिजिकल। कहते हैं कि बस ये सिन है, लोग गुनाह करते हैं, सिंस करते हैं, उसके बाद उनको जाहिर है उसकी सजा मिलती रहेगी। फिजिकल ईविल है, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट। तो एंड इसका फिर मकसद क्या, फिर वही बात कि फिर ये ऐसा क्यों है कि दुनिया इम्परफेक्ट, लोग इम्परफेक्ट, लोगों को परफेक्ट क्यों नहीं बनाया? बिकॉज दिस इज हाउ पीपल विल लर्न, दिस इज हाउ पीपल विल ग्रो। तो एक लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, बिकॉज पीपल हैव अ माइंड, दे हैव अ ब्रेन, दे कैन थिंक, उनको एक समझ देने के लिए उनको इस कॉन्सिक्वेंस से गुजरना जरूरी है। जैसे
all part of learning, and this is how God has created this world. So he tries to answer it like that. But even then, हम अगर इसमें के क्वेश्चन देखें कि फिर कुछ ऐसी मतलब बीमारियां हो जाती हैं लोगों को जहाँ पर which is like completely genetic, which is chromosomal, या जिसमें कोई मतलब लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हो रहा, और की करने की वजह से नहीं हो रहा, and they suffer through it. So again questions like these arise, ये क्यों हो रहा है, मतलब why is this happening, and फिर वहाँ पर हम तरफ आ जाते हैं कि it is like हम अब as a हमारा बिलीफ है ना कि आजमाइश है या हो सकता है कि कोई और चीज ऐसी की हो जिसकी वजह से हमें ये है, yes we're trying to learn something, so it all comes down to believing in or having your faith. जो आपका फेथ है तब आप उस पर कायम रहोगे तब तक यू विल फाइंड रीजंस टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग. जहाँ पे फेथ आपका हट जाता है, एंड द फेथ कुड बी इन एनीथिंग, इट कुड बी इन एनी रिलीजन, इट कुड बी इन एनी कॉन्सेप्ट, इट कुड बी इन एनी आइडिया, लेकिन फेथ होना जरूरी है. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान है वो ही निकल सकते हैं बिकॉज उनका अल्लाह पे भरोसा है. बाकी रिलीजन के लोग भी हैं जिनका अपना फेथ है, एंड दैट गिव्स देम स्ट्रेंथ. सो इन द एंड फेथ इज व्हाट गिव्स यू स्ट्रेंथ, and that whatever you believe is based on whatever you have been taught. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले discuss. The next philosopher that we have is John Locke. This is one of the famous quotes that he has said, that whatever I write, as soon as I discover it not to be true, my hand shall be the forwardest to throw it into the fire. तो क्या मतलब है कि अगर, हाँ बताइए. इस मतलब अगर मैंने कोई आइडिया प्रेजेंट किया और फिर मुझे प्रूफ मिलता है कि वो आइडिया उसके कॉन्ट्रडिक्टरी प्रूफ मिलता है तो मैं ही सबसे पहले होऊंगा जो उस आइडिया को रिजेक्ट करूँ. एग्जैक्टली, ठीक है. तो he believed in logic, and he was known as the father of liberalism. या उसने जो है एम्पिरिसिस्ट मतलब एम्पिरिसिज्म पे उसने काम किया था. जब हम एम्पिरिकल या एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं, एम्पिरिसिज्म मींस एविडेंस बेस्ड, which means कि जिसमें हमारे पास बिल्कुल लॉजिकल एविडेंस मौजूद हो, जो चीज ऑब्जर्वेबल हो वो एम्पिरिकल होती है. तो his theory was completely based on empiricism. So he believed कि अगर किसी चीज का एविडेंस मौजूद नहीं है तो फिर वो चीज गलत है. मतलब इवन अगर मुझे पता चल जाता है कि वो उस चीज का मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस मिलता है, तो यहाँ पर वो फेथ से हट के बात करते हैं. लाइक फेथ या नॉलेज या ट्रूथ या ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, he says कि these are all exactly what it is, the abstract. ये कोई वो नहीं है. हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल चीजों की, हम बात करते हैं एविडेंस. दैट इज व्हाट ट्रूथ इज. ट्रूथ इज व्हाट यू कैन सी. ठीक है. तो ही सेज कि हमारी जो है जैसे सेज कि एक बच्चा जो है, दे हैव उसने टर्म दी टैबुला रासा. इट मींस अ ब्लैंक स्लेट. ही सेज अ पर्सन व्हेन दे आर बोर्न वी आर लाइक अ ब्लैंक स्लेट. ब्लैंक स्लेट क्या है? स्लेट पे हम लिखते हैं, क्या इट्स लाइक पे हम अपने नोट मतलब वो जैसे पहले पुराने जमाने में होते थे ना, हैड स्लेट्स जिसमें वो लिखते थे इंस्टेड ऑफ पेपर्स एंड बुक्स. वैसे इट्स अ ब्लैंक स्लेट. एक इंसान, आप उसमें जो चीजें लिखते जाओगे वो उसकी कॉन्शियसनेस का पार्ट होता जाएगा, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता जाएगा. तो वो कहते हैं कि जब हम ब्लैंक स्लेट है, इसका मतलब ये कि हम पैदा किसी चीज के साथ नहीं हुए हैं. जैसे जो पुराने आइडियाज थे हमने पढ़ा कि इनबॉर्न इनेट आइडियाज हैं, गॉड गिवन आइडियाज हैं, ऑल ऑफ दिस. सो ही सेड दैट इज नॉट द केस. जो दुनिया हमें दिखाएगी वो हम लेते रहेंगे. ठीक है. सो ही सेज कि हमारी जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है, हमारा सेंस परसेप्शन है. सो ही अगेन केम बैक टू सेंस परसेप्शन. दिस इज व्हाटएवर वी सी, व्हाटएवर वी परसीव इज द ट्रूथ. जो हमें नजर नहीं आ रहा वो ट्रूथ नहीं है, वो क्वेश्चनेबल है, और यही एम्पिरिसिज्म कहलाता है. सो ही बिलीव्ड इन डेकार्ट. ही सेड कि ठीक है, डेकार्ट ने जो कहा कि हर चीज क्वेश्चनेबल है, स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, हर चीज पे यकीन नहीं करना चाहिए. उस पॉइंट से उसने डेकार्ट से अग्री किया था कि बिल्कुल ऐसा ही है, वी शुड बी स्केप्टिकल. जस्ट बिकॉज हमें कोई चीज मौजूद है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है. वी कैन डाउट एवरी. ठीक है. नहीं सर कि हम जो भी चीजें अपने अराउंड देखते हैं उसमें दो तरह की परसेप्शन हो सकती है हमारी. तो देयर आर प्राइमरी क्वालिटीज एंड सेकेंडरी क्वालिटीज. तो प्राइमरी क्वालिटीज क्या है? उसने कहा कि ये वो चीजें हैं जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट की अपनी क्वालिटी है, हम जिसको हम देख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एन एप्पल. एक एप्पल की शेप क्या है, उसका कलर क्या है, वो कैसे तरफ से कैसे लटका हुआ होता है. ऑल ऑफ दीज आर द प्राइमरी क्वालिटीज.
ये वो चीजें हैं जिसको 4 लोग भी देखेंगे तो वो उसी तरह से देखेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा उसने कहा सेकेंडरी क्वालिटीज होते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, दिस इज हाउ वी परसीव दैट थिंग सब्जेक्टिवली। जैसे एक एप्पल जो है वो स्वीट है या नहीं है, उसका टेक्सचर हमें कैसा लग रहा है, वो हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ये सारी उसकी सेकेंडरी क्वालिटीज। सो ही सेज कि प्राइमरी क्वालिटीज आर व्हाट एवरीबॉडी कैन ऑब्जर्व, सेकेंडरी क्वालिटीज आर पर्सनल, जिसकी वजह से हर इंसान का परसेप्शन, हर इंसान की जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट होता है। दे आर बोथ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसके साथ दिस वाज ऑल दैट ही टॉक्ड अबाउट, मतलब परसेप्शन के बारे में कि दिस इज हाउ वी परसीव द वर्ल्ड एंड दिस इज हाउ वी शुड परसीव द वर्ल्ड। इसलिए हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, इसलिए चीजें जो है लोगों को डिफरेंटली, मतलब लोग उसको इवैल्यूएट डिफरेंटली करते हैं। कि सेकेंडरी क्वालिटीज डिफरेंट होती है, प्राइमरी क्वालिटीज सेम होती है, एंड वी कैन रिलाई, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन ट्रस्ट। वी कांट ट्रस्ट एन आर्बिट्ररी आइडिया बट वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, फिर लॉक ने also gave a theory of like religious tolerance, spoke about how religion should be tolerated, yeah, different religions should be tolerated. So in this theory there were 3 arguments that were very, you could say, the core of his uh, theory. Okay, so the first one he says is, he talks about earthly judges. Yeah, earthly judges कौन है? कहते हैं कि हमारा स्टेट, हमारा गवर्नमेंट, लोग जो इंटाइटल फील करते हैं कि हम दूसरों को जज करें उनके रिलीजियस एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्योरली उसने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की थी। क्योंकि हम जब बिलीफ की बात कर रहे हैं, हम ट्रूथ की बात कर रहे हैं, तो फिर वही बात है कि रिलीजन इज द वन थिंग which is different for everybody and which is everybody's. Okay, so he says that we should be tolerant towards it. Earthly judges वो ये करते हैं कि हर किसी रिलीजन की जो खुद की ट्रूथ को वो क्वेश्चन करता है। तो उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अपने बिलीफ उसके बिलीफ से क्लैश कर सकते हैं, इट डजंट मेक देम और मी राइट, मुझे नहीं पता। तो आई शुड बी मोर टॉलरेंट, आई शुडंट बी जजिंग अदर पीपल बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। नंबर 2, कि इवन इफ हम अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे पता चल सकता है कि ट्रू रिलीजन कौन सा है, आई कैन प्रूव इट एंड आई हैव एविडेंस अबाउट इट एंड आई कैन डू इट, इवन देन अगर आप एक रिलीजन इन्फोर्स करते हो सबके ऊपर, so it is not going to give you what you want, not really, like, because religion comes from within, religion अंदर से आता है। तो आपने इन्फोर्स करके कह तो दिया कि सब एक रिलीजन को फॉलो करेंगे, बट वायलेंस से आप बिलीफ चेंज नहीं कर सकते। वो शायद ऊपर ऊपर से एग्री कर जाए, बट इंटरनली द बिलीफ इज नॉट गोइंग टू चेंज। And thirdly, he says if you want religious uniformity and if you coerce people in being like having a unanimous religious perspective, तो फिर उससे पीस नहीं होगा, उससे केओस बढ़ेगा। कि आप डाइवर्स रहने दे लोगों को, उनको अपने बिलीफ के साथ रहने दे, तो शायद ज्यादा पीस होगा, लोग पीसफुली रह लेंगे। आप इन्फोर्स करेंगे, एक रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी पे बात करेंगे, तो फिर देयर विल बी मोर केओस। तो फिर क्वेश्चन वही आता है कि एज पीपल, एज अ लीडर ऑफ अ स्टेट, व्हाट डू यू वांट, आपका पर्पस क्या है? कि आप पीस चाहते हो, आप हार्मनी चाहते हो, या आप एक रिलीजियस उसको प्रिवेल करना चाहते हो? जीसस एक आप ये दोनों चीजें ऑपोजिट है। इफ यू वांट वन रिलीजन टू प्रिवेल, माय रिलीजन, इफ आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट फॉलो माय रिलीजन, देन आई कैन नॉट गेट पीस। एज पीपल हमारा जो गोल है वो पीस होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, पीपल शुड लिव टुगेदर, बी टॉलरेंट ऑफ ईच अदर। सो दिस इज रिलीजियस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। Next, we have George Berkeley. And now George Berkeley, his the we could say conclusion of his theory is to be perceived. अब इसका क्या मतलब है? He believed in John Locke. क्या उसने जॉन लॉक की थियोरी को से वो बहुत इम्प्रेस हुआ एंड ही अग्रीड कि हाँ एम्पिरिसिज्म होना चाहिए एंड हमें परसीव करना चाहिए, सेंस परसेप्शन जरूरी है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट he took the concept of perception to a next level. ने जॉन लॉक का जो परसेप्शन था उसको लिया, लेकिन उसको और उसने अलग ही लेवल पे लेके गया, उस तरह से कि he took it apart. He was like, अच्छा ये परसेप्शन की जब बात कर रहे हैं कि
प्राइमरी क्वालिटीज हैं, सेकेंडरी क्वालिटीज हैं। तो इज लाइक प्राइमरी क्वालिटीज सबके लिए बराबर है, सेकेंडरी सबके इंडिविजुअल है, लेकिन सेकेंडरी के बगैर प्राइमरी की कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरे लिए, अगेन अगर हम एप्पल की एग्जांपल लेते हैं, मेरे लिए दिस एप्पल इज समथिंग बिकॉज ऑफ हाउ आई फील अबाउट इट, if I can taste it, if I can eat it, my opinions about the apple is going to make the apple real. अगर मैं इस चीज को कोई इम्पोर्टेंस ही ना दूं, मेरी किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन ही नहीं है, मैं किसी चीज को देखूं ही ना, तो उस चीज की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ही सेज कि मैटर जो है वो प्राइमरी से नहीं सेकेंडरी क्वालिटी से आता है। जस्ट बिकॉज आप उस वो चीज विजिबल है या वो चीज एग्जिस्ट कर, मतलब वो चीज मौजूद है, डजंट मीन कि उसमें मैटर है। कि ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी और चीजें हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अब तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया है। अगर एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हमने आज तक देखा नहीं, तो वो तो लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए तो वो अवेलेबल ही नहीं है ना, हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में। तो कैन वी से दैट इट एग्जिस्ट? मतलब इट डजंट। जब कोई उसको देखेगा तो पता चलेगा कि हाँ इट एग्जिस्ट। तो ही सेज कि बेसिकली जो है वो परसेप्शन से है। until and unless something is perceived, it does not exist. तो मैं अगर यहाँ बैठे ये सोचती हूँ कि सहारा डिजर्ट में एक कैक्टस के ऊपर कोई कीड़ा बैठा हुआ है, देयर इज नो evidence to it, I can't see it, I don't know about it, so it is not there, it doesn't matter if the kira is there or not, I can't see it and nobody can, nobody is, तो इसका मतलब कि एग्जिस्टेंस जो है वो ना होने के बराबर है। so he says कि there are no objects, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, परसीवर्स है। उस ऑब्जेक्ट को कौन देखता है? तो physical form होना itself is not an indication, but there has to be a mind, there has to be people who are perceiving those objects to make the object exist. Then he takes it one step further and says, कि eventually God is the ultimate perceiver. अगर इंसान किसी चीज को नहीं भी देखता, तो गॉड है जो हर चीज को देखता है, हर चीज को परसीव कर रहा है। गॉड की परसेप्शन उस चीज को रियल बना देती है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि यूनिवर्स है या गैलेक्सीज है, एंड हम कहते हैं कि बहुत सारे और प्लैनेट्स हो सकते हैं, there might be others that we haven't discovered yet. So the fact that we believe in its existence, yeah, the fact that we can say that they exist is because God can see and God knows whatever. So again, you will see that he going towards a more religious, इसका अपना religion फिर से इसकी philosophy के साथ coordinate कर रहा है. So this is how he thinks as being perceived. Next we have David Hume. ठीक है, ह्यूम ने बात की एथिक्स की, ठीक है, और मोरल डिसीजंस की, यानी सेस के मोरल डिसीजंस जो है वो हमारे हमेशा मोरल सेंटिमेंट से आता है, मतलब हमारी फीलिंग से आता है, हमें पता नहीं होता, हम बस अज्यूम करते हैं या हम फील करते हैं। तो उसने कहा कि देयर इज दिस इज ऑट प्रॉब्लम, ऑट का मतलब शुड है, तो इज ऑट प्रॉब्लम है। व्हाट इज द इज ऑट प्रॉब्लम, जिसको ह्यूम्स लॉ कहा जाता है, लेटर ऑन दे स्टार्ट कॉलिंग इट ह्यूम्स लॉ। तो ही सेड कि यूजुअली जब लोग इश्यूज की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो हम हमेशा ऑट पे बात करते हैं कि दिस ऑट टू बी लाइक दिस, मतलब दिस शुड बी लाइक दिस। हम अगर बात करते हैं कि अच्छा पाकिस्तान के सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव करें, तो हम कहते हैं अच्छा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लोगों को करप्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को सिंसियर होना चाहिए। तो जस्ट ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हम सजेशंस दे रहे हैं, सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, these are all shoulds. Do we have evidence to prove कि जो हम कह रहे हैं वाकई में ये ये इस चीज को बेहतर कर सकता है या नहीं? तो वो कहते हैं कि जब भी लोग मॉडल सिस्टम की बात करते हैं या जनरली सिस्टम की बात करते हैं, तो आप इस ऑट में ना फंसे कि मतलब आप शुड पे आप ना जाए, आप प्रूफ दें, आप रीजन दें कि आप क्यों कह रहे हैं कि इस तरह की होने से होगा। तो हमारे पास जैसे एक रीजन हम कह सकते हैं कि देखो वी कैन कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर कंट्रीज जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उनका स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है, तो उन
उनके बच्चे ऐसे निकलते हैं, हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है और हमारे बच्चे ऐसे निकल रहे हैं। नाउ व्हेन आई से कि माय स्कूलिंग सिस्टम शुड बी लाइक दैट, आई हैव एन एविडेंस कि मैं उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरा इज नॉट प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ आई एम जस्ट गिविंग, एंड ये वाला ज्यादातर जो चीज है ना, मोरालिटी क्वेश्चन पे आता है कि ऐसे सही तरीका ये है करने का, या प्रॉपर वे ये है, या यूं कहना चाहिए। तो इस कि यहाँ पर आपकी assumption है, नॉट यू आर नॉट श्योर कि वाकई में ऐसा होगा, अनलेस आप उसको टेस्ट करें, तब तक आप कह नहीं सकते। तो शुड पे ना फंसे, या तो कर दें, या तो आप उसको टेस्ट करें, या तो करें। एंड अगर आप शुड दे भी रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन जरूर दें, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। विदाउट रीजन आपकी आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं। दिस इज नॉट प्रॉब्लम और ह्यूमन प्रॉब्लम। ठीक है, now here's another question. Think of a concrete moral question that you have faced in your life and the conclusion that you reached. Okay, so it has to be a moral question. कोई morality का issue होना चाहिए। So just think about it. कभी कोई ऐसा वक्त आया टाइम आपकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपको एक मोरल डिसीजन लेना पड़ा, और आपको उसको मतलब उसमें आपको क्या इशू आया मोरल लेवल पे? जी। अपनी लाइफ का कोई मोरल डिलेमा बताइए जहाँ पर मोरालिटी का क्वेश्चन हुआ और आपको सॉल्व करना पड़ा। कैन वी स्पीक जनरली, लाइक मतलब अपना कोई हाँ, एक्सपीरियंस लेकिन जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे टेस्ट दे रहे हो और आप किसी को चीटिंग करता देख लो, तो आप मतलब कोई बंदा बोलेगा कि मेरा मॉडल ये है, एथिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं बता दूं कि मेरा वो मॉडल वो कहता है, लेकिन फिर मतलब दूसरा बंदा ये आर्ग्यू कर सकता है कि मतलब क्या पता वो इतनी सी चीटिंग के लिए उसका पूरा साल बर्बाद कर दो या वो, और फिर उसने वो मतलब तो ये जैसे फिर वो कर दे कंप्लेन, और फिर उस बंदे का या तो अब वो मतलब उस बंदे का साल खराब हो जाए, या फिर मतलब वो ये भी बोल सकता है कि नहीं इससे इसने लर्न किया है, आगे वो मिस्टेक नहीं करेगा, इस तरह कुछ। ओके। अच्छा, आप अगर मुझे वैसे बताओ कि किसी को कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि, तो हाउ वुड यू कम टू अ डिसीजन? खुद आप ऐसे फंसते हो जहाँ पर कोई आंसर है जो आपको पता है, एंड आपके पीछे दो तीन लोग हैं जो कह रहे हैं आपसे कि हमें बताओ, तो व्हाट वुड यू डू? मैम क्या क्वेश्चन है आपका? कि अगर आप कहीं सिचुएशन में हो जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो कोई, और आपके कुछ लोग हैं, फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स के लिए फिर हम अलग उस पर चले जाते हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो आपसे कह रहे हैं कि हमें इसका आंसर बता दें। ठीक है, तो व्हाट वुड यू डू? विल देयर बी अ मोरल डिलेमा फॉर यू कि हमें चीज करा देनी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? उसको और बता आप दूंगी, क्या करेंगे? बता देंगे तो क्या सोच के? बस बस बता देंगे मैम इतना बता सा। तो एक आध सवाल ही पूछा होगा तो बता देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सपोजिंग कोई ऐसी चीज हो जो आपको बताओ कि ये काफी एक मतलब अच्छा खासा, वो आपका पूरा पेपर ही सपोज चले, इसको और आगे ले जाते हैं कि एक दो सवाल की बात नहीं है, वो आपसे कह रहे हैं कि अपना पेपर थोड़ा सा साइड पे कर लो, उसको पूरा आंसर कॉपी कर नहीं मैं उसमें थोड़ा लो। ये अपना भी पकड़े जाने का रिस्क होता है, तो वो नहीं ऐसा, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो अपने लिए भी मतलब नहीं एग्जैक्टली। करने का।
आई और थिंक दूसरा उसमें ये कि हम लोग फिर अपनी वर्डिंग में लिख रहे होते हैं हर चीज, मतलब हाँ एज एन रट्टा नहीं होता, तो ऐसे जैसे उठा के लिखना है तो, और हम्म कोई हमारा देखेगा तो ऑब्वियसली हमें ये होता है कि टीचर को पता चल जाएगा, और ज्यादातर हम बोलते हाँ हैं कि पढ़ के तुम अपने वर्ड्स वर्डिंग पे लिखो, आइडिया हाँ ले लो मतलब मैंने क्या लिखा है, अब उसको हाँ अपने उसमें मतलब वही ये नहीं होगा कि नहीं कराना है, बस ये होगा कि अपने हम ट्रबल में ना आ जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह से ले लें कि असाइनमेंट है, आपको असाइनमेंट बनाना है, और किसी ने आपसे, आपकी क्लास वालों ने कहा कि अपना असाइनमेंट मुझे सेंड कर दो, मुझे देखना है कि तुमने कैसे किया है, ताकि मैं उसको वैसे कर दूं। मैं पैराफ्रेज कर दूंगी, बट आई एम गोइंग टू, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सबमिट कराना है और सारा कुछ। तो आपको पता है कि वो आप ही का छापेगा, लेकिन वर्ड चेंज कर देगा। जैसे अगर मुझे जैसे बहुत बार पूछते हैं असाइनमेंट मांगती है, तो मतलब अब वो डिपेंड करता है कि अभी अगर आपको पता है कि एक कोई बंदा है जो पूरा आपका ही कॉपी कर लेगा, कि उसको नहीं तो उसको मना कर। लेकिन मतलब अगर पता है, आप मतलब जानते हो, अगर फ्रेंड ही ज्यादातर मांगते हैं, अगर कोई जिसको नहीं जानते हो तो उसको तो मना ही कर देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि वो बंदा सिर्फ मतलब आपका जैसे पैराफ्रेज करके बहुत मतलब सिर्फ आपका बेसिकली आइडिया जैसे पूरा वो कर लेगा और फिर अपने ही वर्ड्स में लिख लेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और और यूजुअली मैम हमारे टीचर्स मोस्टली डिफरेंट टॉपिक्स ही देते हैं, तो कभी कभार ऐसे ही होता है कि बस आइडिया लेने की करना किस तरीके से, तो वो हाँ दे दिए अगर जाते हैं। हाँ प्रॉब्लम वो तब होगी अगर आपका मतलब मेन जो वो है उसमें आपको आइडिया प्रेजेंट करना है। अगर आइडिया प्रेजेंट तो फिर नहीं दे सकते, क्योंकि आपका आइडिया वो अपने वर्ड्स में भी लिख ले तो आइडिया तो आपका है, तब फिर तो तब नहीं देना। अगर कोई आपको मैम कोई टीचर बोले कि आपको कोई आइडिया प्रेजेंट करना है किसी चीज के बारे में, तो नहीं देना। लेकिन अगर जैसे जनरल आपका जो मैथ्स है, जैसे मैथ्स का कोई सवाल दिया है तो वो तो हम करा दें। ठीक है, तो उसमें आपको कोई मोरल वो नहीं होगा कि भाई इसको खुद ही कर लेना चाहिए था, आप ये कैसे सीखेगा अगर नहीं ये ऐसे चीटिंग कर करके पास हुआ तो। नहीं मैम, अगर मतलब जैसे कोई पूरा पेपर चीटिंग करने के लिए मांगे तो वो अलग बात है, लेकिन एक दो सवाल तो चलते। है। ओके, अच्छा आप इस पे मुझे आगे बताइए कि अम, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि सपोज करें आपको पता चलता है कि एक डॉक्टर है जो कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो अपने पेपर में ऐसी चीटिंग कर करके पास हुआ था। जैसे आपको मैम कुछ लोग चीटिंग ऐसे की होते हैं कि थ्योरी में अच्छे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं केस प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, है। तो यू नेवर नो कि हो सकता है। अब बहुत मेरे जानने में ऐसे एक डॉक्टर हैं जो फर्स्ट सेकंड आते थे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करने की बारी आई है तो दे आर नॉट दैट गुड जो एवरेज थे। ठीक है। सो यू नेवर नो कि कौन थ्योरी में अच्छा है, कौन प्रैक्टिकल में अच्छा है। लेकिन आई थिंक आपको, हाँ बताइए। वही देखेंगे कि मतलब अब उसने पूरा पेपर कॉपी किया है कि मतलब जैसे पेपर ही किसी तरह जैसे पेपर लोग खरीदते हैं वो तो नहीं कर लिया, या फिर मतलब ऐसा किया है कि एक आध सवाल जैसे इधर उधर पूछ लिया, एमसीक्यू है ये, फिर तो वो तो मतलब सही है ना, और उसको मतलब आता हो। लेकिन वरना तो अगर कोई पूरा पेपर ही जैसे वो कर ले तो उसमें तो आप खुद ही बोले कितना मतलब थियोरी में खराब होगा कि उसको पूरा पेपर ही किसी से कॉपी करना पड़ रहा है। हाँ, सिनेरियो का उसका तो फिर कोई वही बेसिक्स ही नहीं होंगे उसके पास। हाँ वही मतलब वो वही है। अरे तो ऐसे तो हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में, खासतौर पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाली डिग्रीज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलाकों में ऐसे लोग हैं जो कि जैसे किसी डॉक्टर के साथ एक वार्ड बॉय था जिसने काम किया, हेल्पर था, ठीक है, 8 साल 10 साल उसके साथ काम किया, और उसके बाद उसने, हेल्पर ने अपना क्लिनिक खोला। तो मैम हम छोटे छोटे इलाकों में यही वो तो देखते हैं ना कि ज्यादातर वही लोग प्रॉब्लम में भी आ रहे होते हैं, मतलब मैं लोगों की बात करूँ, डॉक्टर्स की बात नहीं करी फिलहाल, मैं लोगों की बात करूँ कि ज्यादा आपको पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या चल रही है, असल यस मैम बीमारी फिर क्या थी और पता नहीं क्या हुआ था कि उनकी डेथ ही हो गई, बेसिकली ये होता है। यस मैम फिर पेशेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म। तो फिर मतलब यही बात है कि क्या ऐसे पर्सन को, अगर आपको पता चलता है कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि जिसने, मतलब वही बात है कि आपको पता है, आपको 100% पता है कि उसकी डिग्री जाली है, कि उसने पैसे दे के बनवाई थी, जो भी है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ लोगों को हेल्प दे रहा है, क्योंकि जाहिर है उसने कुछ तो सीखा होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिसने 5 साल अगर एमबीबीएस में लगा भी दिए तो उसने नहीं सीखा, कुछ तो सीखा होगा। लेकिन इसका मतलब बस ये कि वो उसकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है वो चीजें मिस कर जाए, हो सकता है वो चीजें ब्लंडर कर जाए, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी नहीं थी कि वो अपने दम पे डिग्री ले सके। क्या ऐसे डॉक्टर को आप रिपोर्ट करेंगे? यस मैम, मतलब एक्चुअली अथॉरिटीज क्योंकि को मैम जाकर रिपोर्ट यहाँ करेंगे? पे मैं यहाँ पे बात आ जाती है लाइफ की, मतलब लोगों की जिंदगी उस एक डॉक्टर पर डिपेंड कर रही है और उसकी वजह से पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं।
हम्म। तो ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली इसको ऐसे रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा। ऐसे आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिस्ट दे दूँ कि ये मेरे इलाके में ये डॉक्टर्स हैं और ये इनका कांटेक्ट है, तो अभी क्लास के बाद क्या आप कॉल करेंगे अथॉरिटी? मैम पहले तो हम लोग खुद जाके देखेंगे ना कि इफ इट्स ट्रू और नॉट। मतलब जाएंगे आप हम देखने के लिए? मैम अगर है सॉरी। सच में उसकी, तो फिर तो बता करना ही पड़ेगा ना, कि मतलब आप कितना खराब हो कि आपको जाली डिग्री लेनी पड़ी। लेकिन फिर वही बात है ना, ये हमारा कितना मसला है, क्या हम वाकई में उस एक्सटेंट जाते हैं कि अगर हमें पता चलता है कहीं कुछ हो रहा है, या हम तब तक नहीं पढ़ते जब तक मसला हमारा नहीं होता। तो अगर हाँ मेरे मैम किसी ये के पास जाना है और मुझे पता चलता है वो डॉक्टर ऐसे है, तो फिर मैं तो हर चीज कर दूँ। लेकिन अगर मुझे पता चलता है यहाँ लियारी में बैठे रहे कि अच्छा औरंगी टाउन में एक क्लिनिक है जहाँ पर ये हो रहा है, तो मैं औरंगी तो नहीं जाऊंगी उस डॉक्टर को चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं। दैट बिकम्स लाइक मैम फिर आगे से अगर मेरे बीच में होता है, जैसे अब ऑब्वियसली मेरे लिए अगर कोई जगह बहुत दूर है, वहां पे मुझे पता चले कि एक डॉक्टर बैठा हुआ है, तो प्रॉब्ली मेरे लिए मुझे कन्वेंस भी नहीं होगी, मुझे कोई जाने भी नहीं देगा या कुछ भी, मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर हाँ मेरे पास सब कुछ है कि मैं कन्वेंस भी है, मैं जा सकती हूँ और सब कुछ है, और मेरे घर वाले भी मुझे अलाउ करेंगे, तो देन प्रॉब्ली मैं चली भी जाऊँ। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का हम पाकिस्तानी इस जगह का मसला ये है कि खासतौर पे लड़कियों को अलाउ ही नहीं किया जाता कि यार तुम इस एरिया से वहां मत जाओ, वहां पे खतरा है, वहां पे लोग सही नहीं है, तो हमें जानी नहीं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या मतलब क्या मोरल ऑब्लिगेशन होती है, क्यों आप ये स्टेप लेंगे? बस कुछ में ये भी होता है कि मतलब लोग कहते हैं कि हमारा मसला नहीं है तो हम कुछ क्यों बोलते, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, तो इसलिए वो नहीं बोलते। क्योंकि कहीं हम पे आ जाए, लोग ये भी करता है। ठीक है। तो हम जब इस तरह की बात करते हैं ना कि मोरल डिसीजन, ये वाली चीजें अपनी अपनी सोसाइटी में मेरा ख्याल है कि हमें ये वाली चीज ज्यादा नजर आती है कि हमारा मसला नहीं है कि इसमें ना पढ़ो। उसके रीजन बहुत सारे हैं। रीजन एक तो ये है कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो है जिनके पास पावर है, उनके खिलाफ कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। दूसरा है कि कंप्लेन का चक्कर इतना मुश्किल होता है कि आप खुद फंस जाते हैं। तो हमारा कल्चरली या हमारा ऑलरेडी चीजें इतनी इस तरह की है ना, हमारी सिविक ड्यूटीज में ये चीज हमें सिखाई जाती है कि अगर आप कहीं देखिए, मतलब देखिए कि वेस्ट में इट इज मच मोर कॉमन कि लोग अगर उनको नजर आता है कहीं कुछ अनजस्ट हो रहा है तो दे विल कॉल द अथॉरिटी। उनको अगर अपने नेबरहुड से कहीं बच्चों के रोने की या मार धाड़ की आवाज आती है, वो पुलिस को बुला लेंगे। हमें अगर आती है तो हम पुलिस को कॉल नहीं करेंगे। एक हमारा आई थिंक यही होता है कि पावर है, पुलिस को खरीद लिया और एक्स बहुत सारे एक्स्ट्रा हम्म, इश्यूज हैं। हम्म, यहाँ पे इतना नहीं है, होगा प्रॉब्ली हो नहीं हो, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जस्टिस मिल जाती है। हाँ। यहाँ पे एक बंदा इनोसेंट है, फंस गया तो फंस गया, ठीक है, तो हमारे पास तो एक फिर उसको मतलब मार दिया जाए तो हाँ सॉरी। हाँ हाँ बोलो। हाँ फिर मैं ये कह रही थी कि उसको अगर मार भी दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसको फिर पूछेंगे, इन दी एंड केस खत्म हो जाएगा इसमें से कि आई नहीं थिंक मिल रहा, कि ये वॉट है। जैसे जो लॉज बने वो इसलिए बने कि आप मतलब लोगों को इस बात पे नहीं जज करो कि आप उसको मतलब कि आपको क्या लगता है सही है। अब जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अपने लिए कोई बहुत बुरा इंसान है, अगर उसकी अनजस्टली डेथ हो गई, बेशक मतलब किसी ने उससे बदला लिया, जैसे मतलब किसी उसने किसी के साथ बुरा किया था उसका, तो हमारे यहाँ लोग बोलेंगे छोड़ दो उसका, मतलब वो डिजर्व करता है। लेकिन मतलब दूसरे मुल्क में बोलेंगे नहीं, वो आपने गलत किया। बेशक आपने उसकी, आपके हिसाब से मॉरल रीजन सही था कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा, मतलब उसने मेरी फैमिली वाले को फॉर एग्जाम्पल मार दिया तो उसे मैंने मार दिया, लेकिन आप बोलोगे नहीं लॉ ऐसा है कि आप नहीं कर सकते, विजिलेंटी वो होता है कि मतलब आप अपने हाथ में नहीं लॉ ले सकते, आप हाँ विजिलेंटी नहीं बनते, आप खुद जस्टिस नहीं दे सकते। मतलब अगर उसने बुरा किया था मार के, तो आपने भी उसको मार के बुरा किया, आप कोई मतलब अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि जिस चीज का आपने उसको अक्यूज किया वही आपने भी किया है। सिर्फ वो क्योंकि बुरा इंसान था उसका मतलब ये नहीं कि आप कर सकते हो सर ऐसा। ठीक है, तो हम अगर देखें भी फिर अगर एक्चुअल फुटेजेस भी देखें तो वी सी कि वहां पर इवन द पुलिस दे रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द क्रिमिनल। यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ता है, मार थप्पड़े मार मार के यस उनको पकड़ मैम, लेते हैं। ठीक है, वहां क्रिमिनल पर के भी भी राइट्स होते हैं। राइट्स हैं और वो उसको जी रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, इवन इफ यू आर द क्रिमिनल इट डजंट मीन कि बस आपके साथ हम कुछ भी करें, जेल में आपको किसी भी तरह से डाल दें, कुछ भी करते हैं, मतलब एक ह्यूमैनिटी का एलिमेंट फिर भी मौजूद होता है। तो
ह्यूमैनिटी का एलिमेंट हर जगह मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हम बहुत रिलैक्स हैं इस मामले में, रिलैक्स नहीं या इनसेंसिटिव है या डिसेंसिटाइज है। जैसे कोई चीज देखें भी तो वी डोंट गेट दैट सेंस कि हमें इनके राइट्स के लिए बात करनी चाहिए, इवन इफ दे आर इन द रॉन्ग। उनको लॉ, क्योंकि एक सिक्योरिटी ये होती है कि अच्छा हम इनको, मुझे इसके साथ कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो ये डिजर्व करता है वो लॉ इसको दे देगा, लॉ इसको इम्प्रिजन कर देगा, वो इसको पनिशमेंट दे देगा। तो मुझे इसके साथ इनह्यूमेन होने की जरूरत नहीं है, इसको अपने किए की सजा मिल जाएगी। यहाँ पर हमें वो वाला सेंस है ही नहीं। इसीलिए लोगों का जो एक मोरालिटी, जो हमारा मोरल कंपस है, वो यहाँ पर डिफरेंट है। हम चीजों को उस तरह से नहीं देख पाते जैसे बाहर के लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर वैसा नहीं है, हमारा सिस्टम वैसा नहीं है, एंड दैट क्रिएट्स, मतलब हमारे लिए जैसे किसी को ब्राइब देना इज वेरी, उस पे मोरालिटी का क्वेश्चन बहुत से लोगों के लिए नहीं होगा कि अच्छा आपके चालान लग गया है तो आपने जरा पुलिस वाले को थोड़े से पैसे दे दिए कि यार ये रखो, एंड दिस इज सच अ कॉमन थिंग कि आपने पैसे पकड़ा दिए, आप उस वक्त आप उसको रिश्वत समझ ही नहीं रहे होते, मतलब ये इतना कॉमन है और ये इतना एक्सेप्टेबल है कि यू डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ और द बिहेवियर, कि आपको डर लगे कि ये मैं क्या करने वाली, नहीं होता। आपको पता है कि भाई इसको ये क्या 500 रुपए का चालान लगा दे रहे, इससे अच्छा इसको 50 रुपए दे दो, जान छुड़ा दे, ये लो पकड़ो जाओ, और वो चले भी जाते हैं। ये तो हमारा जो मोरालिटी का एलिमेंट है वो इसीलिए डिफरेंट है, और हमारे जो मोरल डिलेमास हैं वो डिफरेंट हैं बाहर के लोगों से। यहाँ हम बात करते हैं कि मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो कैंट ने बात की थी मोरालिटी की, इमैनुअल कैंट ने। he said कि एक there is a single moral obligation, वो उसको कहता है categorical imperative। he says कि categorical imperative is a single moral obligation, एक चीज जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और ये एक मोरल लॉ है। ये तो आप कोई भी चीज, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ गलत करूं लेकिन मेरी इंटेंशन अच्छी थी तो गलत बिहेवियर चल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा किसी को बचाने के लिए कोई झूठ बोल दे तो इट्स फाइन, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब ये है कि ये सारे वैलिड हैं और ये सारे गुड हैं, मतलब इनका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही है, ये इंसान की अच्छाई के लिए है, लेकिन दिस इज अ सिंगल थिंग, इसमें कोई अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये तो ही टॉक्स अबाउट मोरल फिलोसफी लाइक दैट, कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं तो फिर वो मोरालिटी नहीं है। कहते हैं कि उसकी फिर कोई वैलिडिटी नहीं रहती कि मैं कभी झूठ बोल लूँ कभी ना बोलूँ फिर उसको जस्टिफाई कर दूँ, नहीं, झूठ इज झूठ, स्टोरी इज स्टोरी। अब अगर एक बच्चा अपनी बीमार अम्मी के लिए कोई दवाइयाँ चुरा के ले जाता है क्योंकि शी इज डाइंग, तो वो चोरी ही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं किसी और चीज की, बिकॉज इट इज रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग बिहेवियर। तो ही टॉक्स अबाउट इट इन अ वेरी रिजिड फॉर्म। यहाँ पे इस फिलोसफी में वही बात है कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है इस तरह की चीजों को देखना। बहुत जगह हमारी जो मोरालिटी है वो डिपेंड करती है ऑन हाउ वी परसीव थिंग्स, ऑन हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल कम्युनिटी। हमें पता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीजों को लेट गो कर देना ज्यादा बेहतर है। हम जैसे खुद कह रहे हैं कि अपने पास हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको हमें पता है कि इनको जस्टिस नहीं मिलना किसी भी तरह से, तो अगर मुझे पैसे देकर somebody is a deserving student और वो गरीब है इसलिए सिफारशी तौर पे उसको नहीं कोई जॉब मिल रही, मतलब बगैर सिफारिश के, तो आप कहेंगे कि भाई सोर्स लगाओ। कितना कॉमन है, हम देखते हैं कि नहीं सोर्स लगाओ क्योंकि सोर्स के बगैर तो जॉब ही नहीं मिलती। तो इवन इफ दैट पर्सन इज डिजर्विंग एंड बाकी कॉम्पिटेंट है तो हम कहते हैं भाई सब लगा रहे हैं, जो इनकॉम्पिटेंट जाहिल है वो भी लगा रहे हैं, तुम लगा दो, कम से कम उस पोजीशन पे कोई अच्छा बंदा तो बैठ जाएगा। तो काम तो फिर भी गलत है, लेकिन वी नो कि बाकी में हकीकत यही है कि अगर ये नहीं लगाएगा तो इसकी जगह कोई दूसरा निकम्मा आ जाएगा और वो लगा देगा और वो वहां बैठ के काम खराब करेगा। इससे अच्छा आप कहें कि तुम ही जाके कर लो, गलत तरीके से करो लेकिन करो, बिकॉज ये जरूरत है। तो एक रिजिड मोरल फिलोसफी जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो इतना रिजिड हो नहीं सकता जितना कैंट कहता है, ठीक है। तो उसकी मोरालिटी की मतलब मोरल ऑब्लिगेशन एक है, लेकिन हम उसको उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं। सोरेन कierkegaard, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया लीप ऑफ फेथ, ठीक है। सो ही सेज कि लीप ऑफ फेथ इज कि हमारा जो फेथ है उसमें एविडेंस नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जिसपे एविडेंस होता है वो फैक्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे लॉक ने बात की, एक चीज पे अगर एविडेंस मिल जाता है तो वो आपका ट्रूथ है, दैट इज इट। तो ही सेज कierkegaard कि जब हम फेथ की बात करते हैं तो फेथ में देयर इज नो फैक्ट, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो ट्रूथ, उसी को हम फेथ कहते हैं। फेथ कम्स विद डाउट, अगर डाउट नहीं है तो फिर इसका मतलब वही बात है कि मैं मुझे इस चीज पे फेथ नहीं है कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस,
मुझे इस चीज पे फेथ नहीं है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ये फैक्ट्स है। मैंने अगर इस चीज को मान लिया तो मैंने कोई तीर नहीं मार लिया। लेकिन इफ आई बिलीव दैट देयर इज गॉड डिस्पाइट नॉट हैविंग सीन गॉड एट ऑल, डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी कॉन्क्रीट, मतलब इस तरह से किसी ने गॉड को नहीं देखा, बट इफ आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, दैट इज फेथ। ऐसी चीज पे बिलीव करना, और वो इस चीज को लीप ऑफ फेथ कहते हैं कि आपको एक लीप लेना है। हैव टू टेक दैट लीप, यू हैव टू जंप टू दिस, बिकॉज डाउट के साथ ही फेथ है, एंड इफ देयर इज नो डाउट देन इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट फेथ। ठीक है। हाँ, ये सारी बात हो गई। एंड लास्टली ही सेज सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी। तो हम जैसे हमने देखा कि काफी फिलोसोफर्स जो है दे वांट टू नो अबाउट द ट्रूथ, कि ट्रूथ क्या है, सच क्या है। तो ही सेज कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? कि हर इंसान मैम का अपना सच है। हाँ, बताइए। नहीं मैम, मतलब वही ना कि जो आप परसीव करते हो वो आपके लिए ट्रुथ है, दूसरे बंदे के लिए कुछ और होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ठीक है कि हर इंसान का अपना ट्रूथ। तो आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज वन ट्रूथ और हम उसको खोजें। जैसे कि इंसान का अपना एक लाइफ है, जो वो देखता है, जो वो फील कर रहा है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसका ट्रूथ है। उसका ट्रूथ आपके ट्रूथ से डिफरेंट हो सकता है। एक घर में जब दो लोग रहते हैं और दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, तो उन दोनों का एक अपना ट्रूथ है जिसकी वजह से उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के ट्रूथ को आप वो नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। देयर इज नो सिंगल ट्रूथ। एंड दूसरा उसने कहा कि एलिमेंट इसमें मौजूद होता है हाउ मच वी, मतलब परसीव करने के बाद हमारी उसकी तरफ वो क्या है, कमिटमेंट क्या है, मतलब हम कितना उस चीज को अटेंड कर रहे हैं, कितना उस चीज को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे दुनिया में गुर्बत है, हमारे मुल्क में गुर्बत है, ये हम सबको पता है। दिस इज अ ट्रूथ एंड एवरीबडी नोज इट, बिकॉज मतलब हम सबके लिए ट्रूथ है। बट हाउ मेनी ऑफ अस वुड एक्चुअली गो आउट एंड रेगुलरली हेल्प द पुअर? हर कोई नहीं कर रहा। इवन तो हमें पता है कि ये यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनको खाने पीने की जरूरत है, लेकिन सब रोजाना तो नहीं उनकी हेल्प कर रहे होते। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते, ये ठीक है, मतलब है और लोग करने वाले हैं, हमें क्या जरूरत है करने की? या कभी उनके ध्यान में वो बात आती ही नहीं है। नॉट दैट दे आर नेगेटिव, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं है। तो ट्रूथ उन दोनों के लिए सेम है, दो लोगों के लिए, लेकिन एक की कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट ट्रूथ ज्यादा है, एक ने अटेंशन उस ट्रूथ को ज्यादा दी, दूसरे ने नहीं दी, तो उनका एक्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वो कहता है कि ट्रूथ जो है वो भी सब्जेक्टिविटी ही है, और हमारी अपनी जो सब्जेक्टिविटी है वो ही हमारे लिए हमारा ट्रूथ है। तो हमारी कमिटमेंट भी उसमें मैटर कर रही हो कि जिस चीज को हमने ज्यादा इम्पोर्टेंस दी वो हमारा सच है, जिसको हमने नहीं दी वो हमारा सच नहीं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये हमारा लास्ट चैप्टर था इस कोर्स का। um, let me just stop the recording.